In the load balancer, normal, application gateway, traffic manager, Azure front door, ये चार तरीके के लोड बैलेंसर सर्विसेज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एजर पोर्टल के ऊपर. और the usage of these load balancer, normal load balancer can help you to create the load balance फॉर एनी सर्विसेज. एफटीपी के लिए, वेब सर्वर के लिए, एप्लीकेशन सर्वर के लिए, एडी आप सेटअप करना चाहते हो, कोई भी डेटाबेस आप स्टैब्लिश करना चाहते हो, इन सभी तरीके के लोड बैलेंसर को मैनेज करने के लिए, इन सभी के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए वी कैन यूज द नॉर्मल लोड बैलेंसर. और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इज बेसिकली डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक टास्क. The meaning of a specific task in the sense like as uh, you can say that कि ये केवल और केवल वेब सर्विसेज को सपोर्ट करता है. इट इज एप्लीकेबल टू सपोर्ट द वेब सर्विसेज ओनली. अगर आपको कोई वेब सर्वर या कोई एप्लीकेशन सर्वर स्टैब्लिश करना है, देन इट विल हेल्प यू. नेक्स्ट, ट्रैफिक मैनेजर. अगर हमने मल्टीपल सर्वर स्टैब्लिश कर रखे हैं इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, एक वेब सर्वर आपने इंडिया में, दूसरा वेब सर्वर किसी दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन में, एंड यू वांटेड टू set up the load balancer between both, so then our traffic manager come into the picture. And then again, Azure front door. Azure front door is work just like as a CDN profile. The meaning of CDN profile, you can say that कि you don't want to establish the web server in the specific location, but आप उसका एक कैश मेमोरी तैयार करके दूसरे लोकेशन में सर्विस को मैनेज करना चाहते हैं. दैट टाइम इट विल वर्क. सो ये अपने पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं जिनकी हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हैं, लोड बैलेंसर स्टैब्लिश कर लेते हैं. आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल ऑफ नॉर्मल लोड बैलेंसर एंड विल डिस्कस अबाउट what are the components are available in load balancer services. So these, in case of theoretical part, we have already completed. uh, I've I'm shared just go my notes for the load balancer. As you said, we need to prepare the load notes. I've started preparing. I've not been able to finish everything, but I've started with this load balancer. great. So I've shared it in WhatsApp. Great. ठीक है. Okay, so let's try to configure Azure load balancer. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लोड बैलेंसर की. So in this case, अगर आपको normal load balancer configure करना है, तो what are the prerequisites you also need to keep in your mind. It look like this. Number of web server, जितने भी number of web server आप establish करना चाहते हैं, you just need to create. All the web server must be connected with the load balancer. यहाँ पे हमने load balancer service को create करेंगे. This is web server 1. कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे. Okay, sharing. Give me 1 minute. Please confirm if you're able to see my screen. Yeah, Yes. now Yeah. This is our load balancer, web server 1, web server 2. And load balancer will provide you separate IP address. It will give us a access of separate public IP address. And by using the same public IP address, you can customize your domain. You need to add your custom domain, जो भी आपने godaddy.com से purchase कर रखा है, and you need to share the same customized domain to all the customers. कोई भी आपकी वेबसाइट को जो एक्सेस कर रहा है, you need to share the same custom domain to all the
external user. External user in the sense you can consider it as a customer. They need to access your web services. They need to access your web services by using सेम कस्टम डोमेन, और कस्टम डोमेन हमारा एसोसिएटेड है इस पब्लिक आईपी एड्रेस से। जब भी हम कस्टम डोमेन को किसी भी सिस्टम के यूआरएल पे टाइप करेंगे ना, इट मींस दैट वाया लोड बैलेंसर आपके बैकएंड में जो वेब सर्विसेज है उन पे वो आपकी सर्विसेज को, उन पे आपके रिक्वेस्ट को एक्सेस करने स्टार्ट कर देगा। So it is responsible to balance the load one at the same time आपके ट्रैफिक को डिवाइड करेगा, एट द सेम टाइम ये फेल ओवर का काम करेगा, और कहीं ना कहीं जो हमारी वेब सर्विसेज की स्पीड है, वेबसाइट एक्सेस करने की स्पीड है, उसको भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नॉर्मल लोड बैलेंसर की होती है। क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे इसमें, हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू क्रिएट टू वर्चुअल मशीन टेस्टिंग पर्पज के लिए, टू वीएम इन सेम availability set। ठीक है, दो वर्चुअल मशीन तैयार करेंगे सेम अवेलेबिलिटी सेट में, एंड यू मस्ट नीड टू ऐड पोर्ट नंबर, लॉजिकल पोर्ट नंबर 3389 एंड पोर्ट नंबर 80 एंड 443। नंबर नेक्स्ट, अगले पार्ट की हम बात करें तो वी ऑल्सो नीड टू कॉन्फ़िगर वन IaaS सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज हम कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड देन create dummy website। After that, add load balancer and attach both VM। These all are the prerequisite जो हम अपने normal load balancer को setup करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। So back to the Azure portal. Let me open the Azure portal and try to set up all the things that required. Open virtual machine panel. In the virtual machine, click create virtual machine. Select your container, type the name of your virtual machine. So I'm going to proceed with Web1। इट्स मैंडेटरी कि आपकी जो वीएम है वो सेम अवेलेबिलिटी सेट में होनी चाहिए, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन अवेलेबिलिटी सेट। नाम दे सर देते हैं विच इज विदाउट एलवी सेट। या विदाउट अवेलेबिलिटी सेट हम क्रिएट कर सकते हैं लोड बैलेंसर में वीएम? यू आर एबल टू एक्सेस ओनली वन वर्चुअल मशीन, क्रिएट तो हो जाएगी बट आप मल्टीपल वीएम को ऐड नहीं कर पाओगे, ओके है ना। जब आप वीएम्स को ऐड करते हो वहां पे ऑप्शन ही नहीं आएगा। ओके So LV set 2 fault domain, 5 update domain, click OK। Trusted, I don't want to create a trusted VM. Just need to proceed server 2016, username and password 3389 है पहले से, पोर्ट नंबर 80 एंड 443 हम और ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट, I'm going to use default VNet। Review and create। Once our virtual machine ready to use, we'll proceed for the next step।
Now, what one virtual machine is ready to use and our responsibility, we need to proceed for the next VM as well. अगली virtual machines भी हम create कर लेते हैं. Let me proceed. It's mandatory कि both virtual machine must be available in same container. Container in the sense I'm talking about the availability set. वेब 2 हम स्टैब्लिश करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा जो ट्रैफिक है, हमारा जो सिग्नल है, वो कौन से वीएम से आ रहा है. अगेन आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद सेम वर्चुअल मशीन. हाँ, वन मोर पॉइंट, जस्ट नीड टू ऐड अवेलेबिलिटी ऑप्शन में दोनों मशीनें सेम अवेलेबिलिटी सेट यानी एलबी सेट हमने तैयार किया था, तो बोथ वर्चुअल मशीन मस्ट बी अवेलेबल इन सेम अवेलेबिलिटी सेट. ऐड द पोर्ट नंबर 443 एंड पोर्ट नंबर 80 दोनों हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. क्लिक next and review and create. We just created our virtual machine, so थोड़ा सा टाइम लगेगा because it is trying to create a new virtual network. हमें same virtual network पे काम करना है जो VNet हमने VM1 के लिए इस्तेमाल किया है. Now VM Web1 VNet is ready to use. I'm just going to add second virtual machine in same virtual network and create. इसमें मेरे को एक क्वेश्चन था कि एज्योर में जो VMs बने उसको डाउनलोड करके बैकअप ले सकते हैं, Yes, we can. तो वो बट कैसे उसका नहीं, उसका जो प्रोसीजर है ना, जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उस केस में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अनमैनेज्ड डिस्क. अनमैनेज्ड डिस्क इन द सेंस द डिस्क दैट यू वांट टू मैनेज बाय सेल्फ. आप अपनी हाँ, तरफ से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको VHDX फॉर्मेट में हार्ड डिस्क मिल जाएगी, और VHDX फॉर्मेट को आप डाउनलोड करेंगे, आप कहीं पे भी आप उस हार्ड डिस्क को डिप्लॉय करके वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया जा सकता है.
तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे वो भी? यहाँ पर है कोई अपने पास न एग्जाम्पल? डिस्क के ऑप्शन पे, जहाँ पे हमारी डिस्क होती है ना वर्चुअल मशीन के हार्ड डिस्क, उस डिस्क से हम डाउनलोड करेंगे। ओके, ठीक। सेकेंड वर्चुअल मशीन इज ऑल्सो रेडी टू यूज। यहाँ पे हमारे दूसरी वर्चुअल मशीन भी रेडी हो चुकी है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट लोड बैलेंसर। यहाँ पे हम लोड बैलेंसर स्टैब्लिश करते हैं एंड ट्राई टू ऐड बोथ द वर्चुअल मशीन इन द सेम एलबी। सो व्हाट यू नीड टू डू, एक नॉर्मल एलबी तैयार करते हैं। ओपन एयरजू पोर्टल, गो टू द नेटवर्किंग ऑप्शन एंड इन द नेटवर्क पार्ट आपको क्लिक करना है लोड बैलेंसर्स पे एंड देन सेलेक्ट लोड बैलेंसर, क्लिक क्रिएट। Select your container, type the name of load balancer, demo LB के नाम से हम तैयार कर लेते हैं। एंड सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। SKU की बात करें तो स्टैंडर्ड हम प्रोसीड कर रहे हैं एंड आई वांटेड टू सेट अप लोड बैलेंसर पब्लिकली। लोड बैलेंसर मस्ट बी पब्लिक क्योंकि हम इसको कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं। इंटरनल इन द सेंस यू वांट टू एक्सेस द लोड बैलेंसर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका वीनेट है, वीनेट के अंदर जो सबनेट्स है केवल वही एक्सेस कर पाएंगे, बट अगर आपने इसको पब्लिक मेंशन कर दिया तो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्टेप। नेक्स्ट, फ्रंट एंड आईपी का मतलब है एजूर फ्रंट एंड आईपी। दिस इज द पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर लोड बैलेंसर। आप यहाँ पे कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस स्टैब्लिश कर दीजिए। An IP address must be public. Test public IP address, आप कोई सा भी नाम दे दो and create new public IP address and save it. This is the public IP address. Multiple IP address I have already used, so that's why ये ऑप्शन दे रहा है exceeded। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे कुछ IP एड्रेस देखते हैं जो पुरानी है। I wanted to remove the existing IP address। पब्लिक आईपी जो पहले से हमारे पास है उनमें से कुछ आईपी एड्रेस को रिमूव करना पड़ेगा। वेब 1 वेब 2 केवल दो ही आईपी दिखा रहा है। ओके, हमने यहाँ पे रेंज आई थिंक प्रोवाइड कर दिया, दैट्स वाई। New public IP address we added in our front end IP address. Next, backend pool. Backend pool is the place जहाँ पे हम अपने ओके, बैकएंड पूल इज द प्लेस जहाँ पे हम अपने वर्चुअल मशीन्स को ऐड करेंगे। जो वेब सर्वर हमने ऐड किया है उन वेब सर्वर को ऐड करने के लिए बैकएंड पूल का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट योर बैकएंड पूल AVD VNet 1 और यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे। अगर दोनों वर्चुअल मशीन हमारी सेम अवेलेबिलिटी सेट में है देन वी आर एबल टू एक्सेस इमीडिएटली। दोनों VM को हम आसानी से एक्सेस कर पाएंगे एट ए सेम टाइम। सो अगर अवेलेबिलिटी सेट अलग है तो उस केस में वी आर अनेबल टू एक्सेस इट।
Select both the virtual machine, click save. Next, inbound rule, which is really important, जहाँ पे हम पोर्ट नंबर 80 को अलाउ करेंगे इनबाउंड पोर्ट में जा करके, you must need to allow port number 80. Select your backend pool और यहाँ पे आप backend pool and IP address both we need to provide. Port number 80 because we don't have a SSL certificate, तो port number 80 पे जाएंगे. Health probe में आपको create करना पड़ेगा new health probe that will help us to authorize to access the traffic from port number 80. Save the configuration. Next, next और यहाँ पे create करेंगे. Then proceed to create. Load balancer create होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. It is in progress. And now meanwhile हम दोनों RDP access करते हैं and let's create a dummy website. ये हमारे पास web server 2 है. Let me connect RDP and try to configure one dummy website ताकि हम identify कर सकें कि हमारा जो traffic है कौन से web server से आ रहा है. Open Server Manager wizard and install IaaS role. सर वेबसाइट होस्टिंग ये आईएस के थ्रू ही होती है एनवायरनमेंट में या कोई दूसरा तरीका है? देखो अगर आपको थर्ड पार्टी यूज करना है तो थर्ड पार्टी में बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको आईएएस रोल को असाइन करने का ऑप्शन देते, जो वेबसाइट को होस्ट करने का ऑप्शन देते हैं. अगर आप बिल्ट इन टूल यूज करोगे तो विंडोज के केस में आईएएस और लिनक्स के केस में अपाचे सर्विस है. थर्ड पार्टी में मल्टीपल सर्विस, लैम्प हो गया, जैम्प हो गया, ये आपके थर्ड पार्टी टूल में आते हैं जिनका यूसेज होता है वेबसाइट को होस्ट करना. वेब सर्वर 1 2 में हमने इंस्टॉलेशन लगा दिया एंड लेट मी कनेक्ट द आरडीपी ऑफ वर्चुअल मशीन 1 एज वेल. दोनों में अलग अलग सेपरेट वेबसाइट हमें तैयार करनी है ताकि वी कैन इजिली आइडेंटिफाई. कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं एंड देन
वेब सर्वर इज 2 इज रेडी टू यूज। यहाँ पे हम www रूट में जाकर के एक छोटी सी डमी वेबसाइट तैयार कर लेते हैं। ओपन विद नोटपैड एंड we just need to type this is test web server 2। दूसरे में भी हम IAS सर्विस इंस्टॉल करते हैं पहले। Okay, it is in progress. We should wait. Now, let's proceed and configure the same dummy website. This PC में जाकर के C drive, intpub and www root. Open with notepad and type this is web server 2, sorry, web server 1, and save the website. That's it. दो वेब सर्विसेज हमने बैकएंड में कॉन्फ़िगर की एंड बैक टू द लोड बैलेंसर और चेक करते हैं क्या हम दोनों वेबसाइट को एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस कर पाते हैं। क्लिक ऑन द फ्रंट एंड आईपी एड्रेस। ये हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस है डिफॉल्ट जो हमें एज़्योर ने प्रोवाइड कर रखा है। कॉपी इट एंड पेस्ट ऑन एनी ब्राउजर। अभी हम जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? 2 से। ठीक है, अगर हम इस पे थोड़ा सा बर्डन देते हैं, बर्डन इन द सेंस थोड़ा सा लोड देते हैं, बार बार इसको रिफ्रेश करते हैं या फिर किसी नए ब्राउजर पे ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो मे बी कि ये हमें वेब सर्वर 1 का भी एक्सेस देगा। वी जस्ट नीड टू गिव द लोड। अब देखिए यहाँ पे वेबसाइट हमारी कहाँ से आ रही है? 1 से। तो एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस से हमें वेब सर्विसेज 1, वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 से दोनों से एक्सेस मिल रहा है। All good. This is the load balancer.
जो हमने सेटअप किया उस लोड बैलेंसर के बैक एंड में 2 वर्चुअल मशीन से एस्टैब्लिश की। बोथ वर्चुअल मशीन्स आर अवेलेबल। And we can access it. Please go through and let me know if you have any question. Any doubt, any question about the normal load balancer, please? Clear, sir. Okay. In the normal load balancer and application gateway. So we also need to complete the part of application gateway. And once we complete the part of application gateway, we'll discuss about the properties. क्योंकि load balancer की properties में हमारे पास बहुत सारे options दिखाई पड़ते हैं. Let me help you to understand about the options which are available. Front-end IP, because interviewer will ask you question related to the component of our load balancer. जो load balancer के अंदर components या options दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है एंड वी मस्ट नीड टू प्रिपेयर अवरसेल्फ। हमें मालूम होना चाहिए कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट एंड आईपी। एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ फ्रंट एंड आईपी, जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट, जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उस पब्लिक आईपी एड्रेस को मैनेज करने के लिए फ्रंट एंड आईपी कम इनटू द पिक्चर। नेक्स्ट, अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो अगला जो पार्ट है विच इज रिलेटेड टू द बैकएंड पूल। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द बैकएंड पूल, हाउ वी कैन मैनेज द बैकएंड पूल, या हम कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बैकएंड पूल के कॉन्सेप्ट को? बैकएंड पूल में हम जो टारगेट सर्वर है उसको हम ऐड कर सकते हैं और पोर्ट 80 के थ्रू वो एक्सेस मिलता है उसका। ठीक है, सो वी कैन कंसीडर इट बैकएंड पूल इज अ प्लेस जहाँ पे हम वर्चुअल मशीन्स को अटैच करने का काम करते हैं। फ्रंट एंड आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करता है। बैकएंड पूल हमारा जो है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो हमने बैकएंड में क्रिएट कर रखे हैं उन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, हेल्थ प्रोब। हेल्थ प्रोब इज अ प्लेस जहाँ पे हम ऑथराइज करते हैं टू एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन्स आरडीपी। ठीक है, जहाँ पे हम आरडीपी एक्सेस कर, नॉट आरडीपी, जहाँ पे हम पब्लिक आईपी एड्रेस को ऑथराइज करते हैं टू एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन। वीएम के अंदर जो वेबसाइट रन कर रही है उनको एक्सेस कराने के लिए हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ प्रोब। लोड बैलेंसिंग रूल, इफ यू वांट टू एक्सेस द पोर्ट नंबर 80 फॉर एक्सेसिंग नॉट डिस्ट्रीब्यू सॉरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोड बैलेंसिंग रूल के अंदर 80 ऐड करेंगे ताकि हम ट्रैफिक को अलाउ कर सकें। एज इट इज नेट रूल्स है, नेट रूल विच इज रियली इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जिसमें हम एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस से मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स जो बैकएंड में अवेलेबल है उन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। We'll discuss about it, but firstly we need to complete the part of our traffic, the another load balancer, which is application gateway, or lock normal option है, which is related to the lock the resources for the accidental deletion। अगर गलती से कोई डिलीट का ऑप्शन क्लिक हो जाता है तो हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन की सहायता से इसको मैनेज कर सकते हैं। All good about the part. Can you please confirm about the concept that we completed in load balancer? यस सर। कंपेयर इट विद ट्रैफिक मैनेजर। इसको हम ट्रैफिक मैनेजर से कंपेयर करते हैं। सो ट्रैफिक मैनेजर क्या है? बेसिकली ट्रैफिक मैनेजर इज द पार्ट
सॉरी, एप्लीकेशन गेटवे भी हमारा एक तरीके का लोड बैलेंसर है, बट गैप क्या है नॉर्मल लोड बैलेंसर और इसमें? नॉर्मल लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कोई भी वर्चुअल मशीन अपने एप्लीकेशन अटैच कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन गेटवे सॉरी, नॉर्मल लोड बैलेंसर में किसी भी वर्चुअल मशीन्स को अटैच किया जा सकता है, एंड डिफ़ॉल्ट वीनेट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट अगर हम एप्लीकेशन गेटवे की बात करें तो इसके लिए आपको खुद का वीनेट तैयार करना पड़ेगा। यू मस्ट नीड टू ऐड योर ऑन वीनेट, और अपने ऑन वीनेट में इसको एस्टैब्लिश करेंगे। Okay, so just allow me 5 minutes, guys. Just give me a break for 5 minutes. I'll connect it again.